Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today, we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is On the Face of It. We are going to start this chapter, which is in your Vistas book. It has been written by Susan Hill. Basically, it is a play, and Susan Hill is a British writer who has presented a very miserable picture of the impaired people, how impaired people feel, how they are mistreated in the society, how they feel alone, what kind of treatment do they face by other people, and what do they need. She has very beautifully presented the picture, and we have to stop and think how we are behaving with the people who have any impairment in their body. Like if there is a blind person, what kind of feelings that person has, what kind of behavior does he expect from others. There are people who just make them feel inferior, who just tease them, and there are people who try to help them without being asked. What is the difference between these two people? Both of them make the impaired people feel inferior. How? When we tease them, we remind them what kind of lack they have in their body. And when we help without being asked, मीन्स अगर हमसे कोई इम्पेयर्ड व्यक्ति हेल्प की डिमांड नहीं कर रहा है और फिर भी हम हेल्प कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर रिमाइंडिंग हिम दैट ही इज इम्पेयर्ड, ही कांट डू हिज वर्क, दैट्स वाई वी हैव कम विदाउट being asked to help him. So both of them are reminding, but the intention of the second one is good. He just want to help because he is thinking that he needs the help, but we forget it that that person also wants to live a life of confidence. He also wants to lead a life of self respect. So we should not help without being asked. So let us start this chapter, this play, and I hope after reading this play your outlook, your opinion, your attitude towards the people with impairment will completely change. So read it carefully. Here we have two characters. This old man is Mr. Lamb and he is Derry. So both of them are impaired. Mr. Lamb is having a tin leg which was blown off during a war. Derry has a burnt face. His face was burnt with acid. So now his face is looking very ugly. No one wants to look at him, and he also does not want to show his face to people because he knows it very well that either they will show pity or they will be filled with contempt. In both the cases he will feel inferior, so he does not want to come in before people. He just hides himself wherever he finds place. He
remains secluded, he remains indoors, or he hangs about on in the places where there are no people, and it is all because of his face. And you can understand how inferior he is feeling because of his face. So how the story starts: Mr. Lamb lives in a garden. It is a very beautiful garden, and Derry has just raised to this garden. When he looks from outside the garden, there is no one in the garden. So he thinks of going in, and he climbs a wall and enters the garden. But when he is walking through the long grass, Mr. Lamb asks him to be careful while walking in the grass because there are apples. He can trip on the apple and he can fall. So Mr. Lamb is there, but Derry thought there was no one, and he is surprised because he does not want to be with people. So he wants to go back, and he said to Mr. Lamb that he thought there is no one. Mr. Lamb said, "Yes, there is no problem. You can come in. My garden's gate is always open. But you came by climbing the wall." After talking uh, for a while, they introduced each other. Mr. Lamb told him that he likes to be with people, he likes to talk with them, he likes to sit with them. Derry, as he is pessimistic, he does not want to be people, and Mr. Lamb comes to know about it. He tries to motivate him, he tries to inspire him that he should not be pessimistic. All the things in the world which have been created by God are beautiful. It is our outlook, it is our attitude which makes them different. And he gives the example of weeds. Weeds जो होते हैं वो फालतू के पौधे होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, उसको हम खरपतवार बोलते हैं. We don't need them, still they grow. So what do the farmers do? Farmers just pull them out and throw them away because they are not needed. But Mr. Lamb thinks that weeds are also having flowers. Look at them carefully. उन पे भी फूल लगते हैं छोटे छोटे. They are also growing. वो तो हमारा एटीट्यूड है कि हमें वो चीज़ चाहिए नहीं, बट वो भी ब्यूटीफुल है, वो भी हरे भरे हैं. वो तो हमारा नज़रिया है उनकी तरफ देखने का. गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग केयरफुली. भगवान के लिए सारी चीज़ें समान हैं. तो क्या हुआ, तुम्हारा फेस जला हुआ है तो तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, एक दिमाग दिया है भगवान ने, आँखें हैं, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो. यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. तो Derry just wants to tell him that don't tell me that story which people always keep telling me, कि भाई तुम मत सोचो कि मैंने वो कहानी नहीं सुनी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कि भाई व्हाट इज़ द मैसेज द स्टोरी गिव्स. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑल्सो. इट इज़ नॉट मैटर हाउ यू लुक, द मैटर इज हाउ यू आर इनसाइड. सुंदर वो नहीं जो बाहर से सुंदर है, सुंदर वो है जो अंदर से सुंदर है, जिसकी विचारधारा सुंदर है. यानी कि मन से अच्छा जो इंसान होता है ना, वही सुंदर होता है. ये स्टोरी मैंने सुनी है. इस्लाम कहता है कि हम ये सब हमारा सोचने का नज़रिया है, हमें अंदर से सुंदर होना चाहिए, बाहर की सुंदरता तो क्षणभंगुर होती है. तो डैरी कहता है कि मैं जानता हूँ उस चीज़ को. बीच बीच में उनकी बातें चलती हैं कि भाई तुम सारा दिन यहाँ पर इतने बड़े गार्डन में अकेले रहते हो, करते हो क्या हो.
तो वो कहता कि मैं एप्पल्स तोड़ता हूँ, यहाँ पर बैठता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ, मधुमक्खियों को सुनता हूँ गाते हुए। व्हाट डज इस टेल? मधुमक्खियाँ गाती हैं या बज़ करती हैं? बज़ करती हैं। बट यहाँ से हमें पता लगता है मिस्टर लैम इज़ अलोन, और उसके पास कोई नहीं है उसका साथ देने के लिए। तो उसे मधुमक्खियाँ भी अकेलेपन में गाती हुई नज़र आती है। और वो ये कहता है कि मेरा जो अंदर से घर है वो तुम्हें लग रहा होगा खाली है, भरा हुआ है, बुक्स से भरा हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। और तुम अपने जले हुए चेहरे के साथ लोगों के पास नहीं जाते हो, और इसीलिए लोग तुमसे दूर भागते हैं, वो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहते, बिकॉज दे कम टू नो कि दैट यू आर फीलिंग इन्फीरियर, यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल। हो सकता है वो इसीलिए तुमसे फेस अपना टर्न कर लेते हो, कि उनको लगता है कि भाई इसको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, हम इसकी फेस की तरफ देख रहे हैं। अब देखो, तुम उनसे डरोगे तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो बी अफ्रेड ऑफ यू। मैं जब गली में जाता हूँ, इस्लाम कहता है कि तो मुझे बच्चे लेमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम, लेकिन मैं उनसे चिढ़ता नहीं हूँ और इसीलिए वो मुझसे डरते नहीं। अगर मैं उनसे चिढ़ूँ और उनके पीछे छड़ी लेके भागूँ तो डेफिनेटली दे विल नॉट कम हियर। वो यहाँ आते हैं और मैं उनको टॉफ़ीज़ देता हूँ, क्योंकि मैं हनी से टॉफ़ीज़ बनाता हूँ और बच्चों को देता हूँ। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, दे हैव नो प्रॉब्लम विद मी। तो तुम अगर इन्फीरियर फील कर रहे हो तो डेफिनेटली पीपल विल सी इट एंड दे विल नॉट सी टुवर्ड्स यू, एंड you will think that they are not watching towards me, they are not looking at my face because of its ugliness। तो अभी दोबारा से आते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरफ, बीस्ट पर। मिस्टर लैम को डेरी ने कहा था कि वो कहानी मैंने सुनी है, मुझे मत बताओ। आई थिंक यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी, हॉलीवुड मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट। आई थिंक 1 or 2 years back it was released, but it is the changed version of the original story। वैसे ये स्टोरी है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया से ही गई हुई स्टोरी है, लेकिन जिस भी कंट्री में गई उन्होंने अपना मसाला डाल करके उसको अपना बना करके पेश किया है। तो लेट मी टेल यू हाउ आई हैव रेड इट। ब्यूटी एंड द बीस्ट जो स्टोरी है उसमें एक राजा होता है। दैट किंग गोज़ ऑन हंटिंग, एंड वाइल गोइंग आउट he asks his daughter, the youngest daughter, what she wants for her, and she tells her father that she wants her father only, she loves him very much। तो वो चाहती है कि उसके फादर वापस आएँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो कहता है कि बताओ मुझे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा मैं। सो शी आस्क हिम टू ब्रिंग अ रोज़ फ्लावर फॉर हर। सो किंग गोज़ ऑन द हंटिंग ट्रिप, और हंटिंग ट्रिप पर जब वो जाता है तो हंटिंग के दौरान वो थोड़ा सा अपने ट्रूप से अलग हो जाता है और भटक जाता है, और शाम हो जाती है, वापस आने का टाइम होता है, तो लेकिन वो रास्ता भटक जाता है, तो इसको अब वापस जाने का रास्ता नज़र नहीं आता है। रात हो जाती है जंगल में, आपको पता है जब घने जंगल में कोई इंसान हो, रात हो जाए तो डेफिनेटली रास्ता दिखेगा नहीं अंधेरे में। सो अब वो सोचता है कि यहाँ पर ठहरने के लिए बंदोबस्त किया जाए, और वो खोजता है तो उसे एक महल दिखाई देता है जंगल के बीच में, आलीशान महल। He thinks, how can there be a palace in a forest, and the palace is so beautiful? He thinks that there must be people, so he goes inside the palace and hoping that he would get shelter there, but he finds no one there। As he enters the palace, he finds everything prepared। ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल अच्छे से करीने से सजा रखा है सब कुछ, जैसे कि किसी का स्वागत है। और बिकॉज पूरे दिन से राजा हंटिंग के लिए आया हुआ था तो उसे भूख लगी हुई थी, और डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा हुआ है। वो सोचता है किसके लिए डिनर है, देयर आर नॉट पीपल। उससे रहा नहीं जाता, वो वेट नहीं कर सकता क्योंकि उसको भूख लगी और वो खा लेता है। आफ्टर टेकिंग डिनर ही वेट्स फॉर
a long time, but no one comes. He wants to thank the person. Still, no one comes. Now he is feeling sleepy, so he goes and finds a bed to sleep. There also he finds that it seems that someone has prepared the bed for him. So he sleeps there, and when he gets up in the morning, he still finds no one there. He is surprised to think who is doing all this thing, but he is not able to watch the person. Now he is ready to go, but he wants to thank the person, but no one there, he finds no one there. But he can't wait for long time, he has to go. His troops, the soldiers, must also be searching for him. So he goes out. While going out in the garden, he finds rose flowers, and he remembers what his daughter had asked him to bring for her. Now he plucked a flower. As soon as he plucked the flower, a monster emerged there. एक राक्षस वहां पर प्रकट हुआ, और वो बहुत ही गुस्से में था. उस राक्षस ने कहा राजा को, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी आज्ञा के बगैर, मुझसे परमिशन लिए बगैर तुमने मेरे गार्डन से फ्लावर तोड़ लिया. हाउ कुड ही डू दैट? राजा ने कहा कि भाई ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके जा रहा हूँ, और मुझे आते वक्त उसने बोला था, और आप कौन हो? तो मॉन्स्टर ने कहा कि मैं इस पैलेस का मालिक हूँ. मैंने तुम्हारे लिए कितनी अरेंजमेंट्स की, मैंने कितना तुमको मेहमान समझ करके तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अरेंज की, तुम्हें डिनर दिया, तुम्हारे लिए बेड लगाया. आई मेड यू फील कंफर्टेबल, बट यू डिडंट आस्क फॉर माई परमिशन बिफोर प्लकिंग द फ्लावर. नाउ आई वुड डिमोलिश द होल स्टेट ऑफ यू. तुम्हारे पूरे के पूरे स्टेट को मैं डिमोलिश कर दूंगा, हर एक इंसान को मार दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा जा करके. दिस इज द पनिशमेंट. राजा गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है कि भाई ऐसा मत करो, मेरी मेरी सज़ा, गलती की सज़ा मेरे पूरे राज्य को मत दो, मुझे मार दो. सो मॉन्स्टर कहता है कि तुमने फ्लावर अपनी बेटी के लिए तोड़ा है ना, तो आप अपने बेटी को बचाना चाहते हो, तो अपने राज्य को बचाना चाहते हो, तुम बेटी को यहाँ पर छोड़ जाओ. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव योर स्टेट. राजा चुप हो जाता है एकदम से, बिकॉज नो, देर इज़ नो फादर इन द वर्ल्ड हु कैन लेट हिज डॉटर इन डेंजर. मीन्स वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता. तो अब वो चला जाता है. मॉन्स्टर गिव्स हिम अ पीरियड, 15 डेज पीरियड, कि भाई 15 दिन में अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आकर के तुम्हारे राज्य को डिमोलिश कर दूंगा. तो राजा जाता है, और जाने के बाद उसके बिहेवियर में बहुत सारा चेंज आ जाता है. उसकी बेटी उस चीज़ को देखती है, नोटिस करती है, और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उसके फादर बड़े चिंतित रहते हैं. तो वो पूछती है, तो फादर नहीं बताता है, लेकिन वो फोर्स करती है, तो राजा को बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है. अब बेटी कहती है कि अगर ऐसा है तो पूरे राज्य को बचाने के लिए आपको अपनी बेटी का बलिदान दे देना चाहिए. एक इंसान के अगर सेक्रीफाइस से इतने सारे लोगों की जान बचती है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए. और वो अपने फादर को ये बात बोल करके उस पैलेस के लिए निकल जाती है, और वहाँ पर जा कर के वो मॉन्स्टर के पैलेस में रहती है. बट वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है. वो उसको देखना भी पसंद नहीं करती, बिकॉज ही इज़ वेरी हीनस, मीन्स बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, भयानक है. बट धीरे धीरे उसको पता लगता है कि भाई वो जो राक्षस है ना, वो दिखने में इतना भयानक है, अंदर से मन का बड़ा अच्छा है. और वो इस चीज़ को देखने के बाद उसके पास बैठती है, उससे बातें भी करती है. दे टॉक विद ईच अदर, और वो ऐसे रहते हैं जैसे एक अच्छे फ्रेंड होते हैं. उनको ऐसे रहते हुए काफ़ी समय बीत जाता है, और एक दिन उसको सपना आता है राजकुमारी को कि उसके फादर बहुत ही बीमार है और वो मरने वाले हैं. और वो उठ करके राक्षस को बोलती है कि भाई मुझे जाना है अपने फादर को मिल के आना है एक बार. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और वो मरने वाले हैं.
अगर मैं नहीं गई तो वो मर जाएंगे। तो राक्षस मना कर देता है, बिकॉज ही सेज दैट ही कैन ऑल्सो नॉट लिव विदाउट हर, और अगर वो वापस गई तो नहीं आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगा, बिकॉज दे आर यूज्ड टू ईच अदर। नाउ द प्रिंसेस टेल्स हिम दैट शी वुड सर्टेनली कम बैक। वो उसको वादा करके जाती है कि मैं वो पक्का वापस आऊँगी, और चली जाती है और अपने फादर को जा कर के देखती है, और वो सच में बीमार होता है, और उसको कहती है कि भाई मेरी टेंशन मत लो, मैं बड़े खुशी से रहती हूँ वहाँ पर, और वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही दिल का बहुत अच्छा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत करो। और वो कुछ दिन वहाँ पर रहती है, उसके फादर भी बड़े खुश होते हैं, और फिर भूल जाती है वो वापस आना। लेकिन जब वो उसको याद आता है तो उसको लगता है कि द मॉन्स्टर वुड बी वेटिंग फॉर हर, और वो तो पागल हो गया होगा इंतज़ार करते हुए। तो वो निकल पड़ती है घोड़े पर, और जब पहुंचती है वहाँ पर जाकर के देखती है कि दैट मॉन्स्टर इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेट एंड ही इज़ जस्ट कॉलिंग हर नेम। और वो जा कर के वहाँ पर उसको गोद में लेती है, और वो सोचती है कि कहीं ये मर ना गया हो, और वो उसको गोद में ले लेती है एंड शी किसेस हिम। और जैसी वो ऐसा करती है, वो मॉन्स्टर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल जाता है, और वो हैरान हो जाती है, और वो देखती है ये क्या हो गया। तो वो बताता है कि भाई मुझे एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से मैं कुरूप हो गया, क्योंकि मैंने किसी का मजाक उड़ाया था, किसी की कुरूपता का। तो मुझे ये श्राप दिया गया था कि जब तक मुझे कोई लड़की मेरे इस कुरूप होने के बावजूद भी मुझसे प्यार नहीं करती है, तो तब तक मैं ऐसा ही रहूँगा। और तुमने ऐसा किया है, तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे मेरी कुरूपता के बावजूद तुमने मेरे अंदर की अच्छाई को देखा, और इसी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हुआ, और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। तो यहाँ पर डेरी ये कहता है कि भाई तुम मुझे वो याद मत दिलाओ, मुझे पता है उस स्टोरी का, वो स्टोरी थी, उस स्टोरी में प्रिंसेस ने मॉन्स्टर को किस किया तो वो चेंज हो गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, और ना ही नो वन इज़ गोइंग टू किस मी, बिकॉज मेरी मदर जो है ना वो भी मेरे फेस के इस साइड मुझे किस नहीं करती है, वो भी दूसरी साइड करती है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इलॉजिकल थिंग फॉर मी टू हैपन इन माई लाइफ। सो मिस्टर लैम कहता है कि तो इसलिए तुम अपने आप को कमरे में बंद रखते हो, इससे क्या होगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक ऐसे इंसान की जो हर एक चीज़ से डरता था, और वो हमेशा इस डर में रहता कहीं वो मर जाए, कहीं केले के छिलके से फिसल जाए, कहीं कोई इंसान उस पर छींक दे, खांस दे, उससे उसको बीमारी हो जाए, कहीं कोई वो रोड पर जा रहा हो और कोई बस बस उसे कुचल दे। तो वो इसलिए अपने घर में ही रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, बाहर खतरा है। तो डेरी कहता है कि अच्छा वो हमेशा अपने कमरे में रहा। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऊपर से एक घड़ी गिरी, पता नहीं कोई चीज़ गिरी, ऑब्जेक्ट गिरी, उसके सर पे लगी और वो वहीं पे मर गया। तो इट मीन्स ही वांट्स टू टेल हिम कि ज़िंदगी को जियो, भर भरपूर जियो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इट विल हैपन। सो तुम पैसिमिस्टिक बन करके रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो अपनी लाइफ को फुल्ली जियो। तो डेरी को ये बात समझ में आ गई, और वो हंसता है बहुत ही ज़्यादा, और उसका जो पैसिमिस्टिक जो नेचर है वो बदल जाता है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम यहाँ पर क्या करते हो सारा दिन, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, तुम तो बड़े अकेले हो, अगर किसी दिन तुम सेब तोड़ते हुए गिर के ऊपर से गिर गए तो मर जाओगे, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, तो तुम्हें कैसे तुम यहाँ पर मैनेज करते हो। तो डेरी को लैम कहता है कि तुम आ सकते हो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, हम दोनों यहाँ पर रह करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो मिस्टर लैम को डेरी को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जिससे बात करने पे उसको लगा कि उसको इन्फीरियर नहीं लग रहा है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे पसंद आई तुम्हारी बातें, मुझे पसंद आया तुम्हारा गार्डन, और मैं घर जा रहा हूँ वापस, अपनी माँ को बोल के आ रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो मिस्टर लैम कहता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आएंगे वापस, लेकिन कोई नहीं आता। वो कहता है कि मिस्टर लैम कहता है दैट आई विल कम बैक, सर्टेनली कम बैक। सो वो अपने घर जाता है दौड़ता हुआ, और मिस्टर लैम अपनी माँ को बोलता है कि भाई मैं मिस्टर लैम के साथ रहूँगा। उसकी माँ उसको धमकाती है कि नहीं जाना है, लेकिन वो भाग करके वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है तब तक मिस्टर लैम सेब तोड़ते हुए सीढ़ी से गिर करके उसकी गर्दन टूट चुकी होती है, और वो मर गया होता है। अब डेरी आकर के उसको अपनी गोद में लेता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ वापस। आयरनी इज़ कि भाई मिस्टर लैम को एक साथी मिल गया था जो इन्फीरियर फील कर रहा था, और डेरी को भी मिल गया था कोई ऐसा इंसान जिसके पास बात रह करके उसको उसके साथ बातें करके इन्फीरियर नहीं लग रहा था उसको।
बट आयरनी इज़ कि भाई वो मर गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें यही शो करना चाहती है कि जो इम्पेयर्ड पीपल है ना, उनकी लाइफ कुछ ऐसे ही चलती है। दे डोंट फाइंड सॉलेस, दे डोंट फाइंड पीस। उनकी लाइफ में ये फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है। दे आर ऑलवेज पेसिमिस्टिक। कोई ना कोई आता है जो उनकी लाइफ को झकझोर के चला जाता है, उनको इन्फीरियर फील करा के चला जाता है। और अगर कोई इंसान ऐसा होता है डेफिनेटली कि उनको लगता है कि भाई अपनापन है, तो देन सिचुएशंस मेक इट क्रिटिकल फॉर देम नॉट टू लिव टुगेदर। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में चलता रहता है। तो बड़ी ही पेसिमिस्टिक लाइफ होती है, और इसको एक अच्छे तरीके से सुसान हिल ने प्रेजेंट किया है। बट एक हमें एक मैसेज भी दिया है दैट वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक, वी मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। एक बंदा पेसिमिस्टिक है, एक ऑप्टिमिस्टिक है, बट ऑप्टिमिस्टिक जो है वो भी इम्पेयर्ड है, उसकी एक टिन लेग है, स्टिल ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। और उसकी बातों से लगता है कि वो भी अकेला है, स्टिल ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ही इज़ हैविंग सो मच optimism that he can incite others interest also in life। उसकी कैसे पता लगता है वो पेसिमिस्टिक है? कि वो जो भी ये कहता है कि हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आएंगे वापस, लेकिन नहीं आता कोई भी। सो आई थिंक दैट थ्रू दिस समरी यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द प्ले। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment. We are going to start the chapter, the play tomorrow. And till then, my dear students, take care. Bye.